افسانے کا جیسے کہ میں نے کہا افسانے کا عنوان ہے اجنبی. اجنبی کی رخصتی کے بعد اس نے باہر جھانک کر دیکھا. شام رات کے گلے مل رہی تھی. اسٹریٹ لائٹس بلا غرض اپنی روشنی بکھیر رہے تھے. جن کے اطراف ٹڈے اڑ رہے تھے. اس نے دروازہ بند کر لیا اور پھر آ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا. اس کے ذہن میں اجنبی سے متعلق سوالات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا، مگر کوئی تشفیع اور اطمینان بخش جواب نہیں مل رہا تھا. وہ بہت دیر تک اپنے آپ میں گم سوچوں میں غرق تھا. اسی اثنا میں اس کا دوست جو بچکانہ سوالات کرنے کا عادی تھا، موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اجازت لے کر وہ بھی رخصت ہو گیا. اس کے بعد اس کی بیوی رسوئی سے حال میں آ گئی اور اپنے شوہر کو گم سم دیکھ کر اپنے آپ کو اخلاقی مجرم تصور کرتے ہوئے پوچھنے لگی، شاید آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ میں اس اجنبی کو اور میرے اس سے. اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھے بغیر زمین پر نظریں جمائے جواب دیا، نہیں تو میں کیوں اس معاملے پر غور کرنے لگوں؟ آخر جس کا ہم سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ہماری جان پہچان. بیوی نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، بات صرف اتنی ہے کہ پرسوں جب میں بازار میں کپڑوں کی دکان گئی تھی، اس وقت اس نے بیوی کی طرف تعجب خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، خیر چھوڑ دو ان باتوں کو، خواہ مخواہ کیوں اس الجھن میں پڑتی ہو؟ کوئی سرپھرا ہوگا، ورنہ اس خود غرض اور مفاد پرست دنیا میں کون اس طرح کرم کرتا پھرے گا اور بیکار میں ناآشنا لوگوں کو مٹھائی بانٹتا پھرے گا. میرے محترم بھائی جناب جامی صاحب کی بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ سے بہت لمبے عرصے تک خاموشی کے بعد جو فائلوں میں گردآلود چیزوں کو نکال باہر کرنے اور پھر آپ لوگوں کے سامنے ان کو لانے کے لیے انہوں نے میری توجہ دلائی ہے. میری 1-2 پیروڈیز ہیں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت مختصراً ایک انشائیہ نہیں، میں کہوں گی کہ یہ طنز و مزاحیہ مضمون ہے، اس کو پیش کرنے کے بعد اپنی جگہ لیتی ہوں. اقبال کی ایک نظم پر میں نے پیروڈی کہی ہے. پیروڈی سنیے گا اور خیال کیجئے کہ یہ کون سی نظم پر میں نے پیروڈی کہی ہے. تو رہنورد مال ہے سیرت نہ کر قبول، تو رہنورد مال ہے سیرت نہ کر قبول، لڑکی میں ہوں ہزاروں ہنر پر نہ کر قبول. اے جوئے حرص بڑھ کے لے مطلوبہ مال و زر، اے جوئے حرص بڑھ کے لے مطلوبہ مال و زر، 1,00,000 سے ہو کم کوئی تحفہ نہ کر قبول. کھویا نہ جا صفات شریک حیات میں، کھویا نہ جا صفات شریک حیات میں، اے زر پرست گرمی محفل نہ کر قبول. صبح نکاح یہ سوچ لے ٹھنڈے دماغ سے، صبح نکاح یہ سوچ لے ٹھنڈے دماغ سے، ہر ڈیل کیش میں ہو کوئی چک نہ کر قبول. فطرت دوئی پسند رکھ تو لا شریک رہ، اے رہنورد مال سیرت نہ کر قبول. ایک اور نظم تھی ہمارے ترقی پسند شعراء میں جو سرخیل رہے، اختر الایمان کی شیشے کا آدمی، اس پر میں نے پیروڈی کہی ہے، پیسے کا آدمی. سنیے گا اور سر دھنیے گا. لگاؤ شرط اور دستے ہوس بلند کرو، لگا لو شرط اور دستے ہوس بلند کرو، فانی عمر کے ایک ایک دن کو کیش کرو. کوئی تو چکر چلاؤ کہ آج کے دن بھی، کوئی تو چکر چلاؤ کہ آج کے دن بھی، زبان شوق سے کلمہ پڑھو تو پیسے کا. ضمیر جاگ نہ جائے یہ اہتمام کرو، ضمیر جاگ نہ جائے یہ اہتمام کرو. کوئی تو چکر چلاؤ ہر ایک دن یوں ہی، کچھ اس طرح سے گزر جائے واٹ لگ جائے. حلال پیسے میں اب برکتیں نہیں ہوتی،
हलाल पैसे में अब बरकतें नहीं होती, हलाल पैसे से अब नेमतें नहीं मिलती। बखैर खूबी तुम दुनिया के कारोबार करो, हो आखिरत का जो मौहूम खौफ दिल में कहीं, हो आखिरत का जो मौहूम खौफ दिल में कहीं, खुरच के फेंक जमाने के साथ आगे बढ़ो। पैसे का आदमी। ये एक ही मुख्तसर मजमून है। पैसे का आदमी पर मुझे एक शेर याद अगर आप इजाजत दें तो। इरशाद। क्या है, एक शायर कहता है कि मेरा एक दोस्त मर गया, मैं उदास था इसलिए कि मेरा पैसा उसके पास था। इस इंशाइये का मैंने उन्वान दिया है। उन्वान तो कोई होता नहीं है, इंशाइया वो सिंफे मजमून को कहते हैं जहां से आप अपने महंगाई से लेकर आलमी मसाइल तक आप बिला खौफ खतर उस पर जो है अपनी आरा का अपने ख्यालात को कलमबंद करते चले जाते हैं। ये बहुत ही खुली डली सिंफ है। उसमें आप देखिएगा क्या कहने की कोशिश की है। बंदे खुदा, आपने शराबों के कॉकटेल के बारे में जरूर सुना होगा। अब नए हजारिये में तहजीब व तमद्दुन, मईशत व माशरत, सियासत की साजिशियों के कॉकटेल ने क्या अजब समा बांध रखा है। इसकी नजारगी की जुर्रत चश्मे बीना करती और अपनी बीनाई पर आठ आंसू बहाती है। एक न शुद्ध दो शुद्ध वाले दिन लद गए, अब तो एक न शुद्ध हजार शुद्ध वाली इस्तलाह घड़नी पड़ेगी। जिन अमाल पर हमारी पिछली नस्लें मारे हया और नदामत के निगाहें झुका लिया करती थीं और उनकी जबानें गंग हो जाया करती थीं, आज नौजवान ऐसी आई गई बातों पर बड़े कूल हैं और जिन बातों को मौरिज़ गुफ्तगू में लाना मायूब भी नहीं मातूब समझा जाता था, उन पर खुलकर बोलना नई नस्ल का शुआर बन गया है। जिन मुद्दों पर बोलते हुए हमारे बुजुर्ग चराग पा यानी आग बगोला बिल्कुल आग का गोला बन जाया करते थे, उन्हें आज की जनरेशन अगले वक्तों के लोगों की खुराफात कहती और बहुत समझबूझ का मुजाहरा करती है। उर्दू जबान का एक लफ्ज महरम हुआ करता था, जिसका इतलाक आज अय्याम हज के लिए मुख्तस कर दिया गया है। मगर इसके मासवा भी हमारी माशरत और मजलिसी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता था। ये लफ्ज महरम की कदर कीमत के साथ साथ समाजी हैसियत भी मुतय्यन हुआ करती थी, मगर तहजीब की पैराडाइम शिफ्ट ने आज महरमों को तहे महराब बिठा दिया है। गोया अब महरम मुजरिम बना मुंह छुपाए बैठे हैं और गैर महरमों ने मुआशरती जिंदगी में वो धमा चौकड़ी मचाई है कि अल्लाह तौबा। उरुसुल बिलाद बेंगलोर जैसे 4 गांव आबाद शहरों की दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती आबादी के अज़दहाम को देखते हुए किस बुरी तरह से हमें सरशार की याद सताने लगती है, मत पूछिए। तहजीब के जवाल बुरद होने के जो नक्शगरी सरशार कर गए, आज अगर जिंदा होते तो दारुस्सुरूर को दारुश्शुरूर में बदलता देखकर उनका खल्म रोशनाई नहीं आंसू टपका रहा होता। मगर जनाब, और आज कौन आंख है जो तहजीब अखलाक व इख्तियार का हशर नशर देखकर खुदाए लम यज़ल की बारगाह में एक शर्म निदामत का आंसू ही गिरा दे। शायद उसे हमारे दीन के जंजाल पर रहम भी आ जाए, मगर वाए हसरता के सारी खलकत तो काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे जैसी सूरत हाल में घिरी हुई अभी पहचानती नहीं हूँ। अभी राहबर को मैं की मूरत बनी हुई आगे आगे और आगे ही निकल जाना चाहती है। इंसानी तारीख में शायद ही कोई दौर ऐसा होगा कि कुल बनी नोए इंसान एक दूसरे की देखा देखी मुफ्त में यूं खराब ख्वार हुई होगी। दूर क्यों जाइए, हमारे घरों में सीन लगा कर देखिए तो जरा। सास को देख बहू बिगड़ रही है, माँ को देख दोख्तर फरखुंदा अख्तर बिगड़ रही है, उस्ताद को देख शागिर्द, तो कहीं बाप को देख फर्जंद दिलबंद बिगड़ने के चक्कर में चकरा रहे हैं। वो कहावत फरसुदा हुई कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग पकड़ेगा। अब तो जनाब भला मानस इंसान दूसरे को देख रंग नहीं पकड़ेगा, बल्कि उसके दिल का जंग पकड़ने के जतन करेगा। इसी जंग आलूदगी ने हमारी सोचो फिक्र को इस कदर मुलविस कर रखा है कि हर बंदा बशर एक दूसरे को वही पिलाने के चक्कर में चकराए फिरता है।
पहले तो हमारे शहर के पुरौनक सुहाने नज़ारे और तहजीब व तमद्दुन के मुजाहरे देख जुबान खल्क से वाह बेंगलोर की सदाएं निकला करती थी। पर अब यहाँ जो वक़्फ़ पजीर हो रहे वारदातों के गोशवारे देख देख कर हमारे शहर की शोहरत और मकबूलियत के शतीर चिटकने लगे हैं। अक्सर यूं ही बैठे बिठाए ये ख्याल सताने लगता है कि उरूसुल बिलाद में बाज़ सड़कों का नफूज न हुआ होता तो फैशन ज़िंदगी के स्ट्रिप्टीज नज़ारों का क्या हशर होता, या फिर यूं कहिए फैशन की परकालाएं मालजादियां अपने तन मन धन की बाजियां लगाने कहाँ का रुख करती। ये ख्याल भी बहुत वहशत अंगीज है कि फ्रेंच खुशबुओं के भबकारों, फाउंडेशन की मोटी मोटी तहों और नेट में लगी लिपटी बेचारियां नारियां अपनी ड्राइंग रूम्स में मेकअप के ताफुन और जस में मम्मियां न बन जाती। दूसरे ये कि नित नए हेयर स्टाइलों और मलबूसात के नए डिजाइनों की मॉडलिंग कहाँ जाकर करती। और या फिर ये भी सोचिए कि एमजी रोड ना हुआ होता तो हमारी नई पोद अपने अक़दार और अखलाक के मुजाहरे कहाँ जाकर करते और मॉडर्न अंगरखों में कहाँ थिरकते फिरते। या फिर उन खबरों का क्या होगा जिनमें नए साल की आमद के जश्न की जुनूकी चीखती चिल्लाती खबरों की हाहाकार होती। और ये भी बतलाइए कि एमजी रोड की वो सारी फुटपाथ आराइयां, कैफे आराइयां, पब आराइयों का क्या होता जो इस सड़क की आन बान और शान बनी है। किसी दूसरे शहर ने इन रौनकों को चुरा लिया होता तो हमारी नस्ल की शामों का किस कदर नुकसान हो गया होता और उस भुगतान को कौन भरता। रावी गीबत बयान तो यहाँ तक कहने का यारा रखता है कि बेंगलोर उरूसुल बिलाद में एक केरल का टापू आबाद है, एक आंध्रा का टापू आबाद है, एक तमिलनाडु का टापू आबाद है, एक भरा पूरा बिहार भी है, यूपी भी अपनी मौजूदगी लिखवा रहा है। पर इन सारे टापुओं में हमारे मरहूम और मकबूल शहर के वो जादू बयान नजारे कहाँ जा सोए हैं, इसका पता हमें कोई नहीं देता। वल्लाह आलम। सिलिकॉन सिटी की छतरी ने जब से हमारे शहर पर साइबान तान लिया है, हम भी आलमी तहजीब के रंग ढंग देख देख बड़े शादमा और मसरूर होने लगे हैं। बाज नजारे तो ऐसे दिलनवाज की हमारी ऐनक के शीशे साफ करके देखना पड़ता है। कहीं हम आलम ख्वाब में लंदन, पेरिस या न्यूयॉर्क में तो नहीं बस गए हैं। साहिबो, अगर हमारा शहर इसी रफ्तार से तरक्की करता जाए तो वो दिन दूर नहीं कि हम अपने शहर को ईदैन की मुबारकबाद वाले कार्डों और पेंटिंगों में देखकर खुश हो लिया करेंगे। औरत के हाथों आजादी का अलम देकर आज फेमिनिज्म ने उसे जो रुस्वा किया है उसकी रुदात जरा सुनिएगा। अल्लामा इकबाल ने तो वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग आमीजी की बड़ी सताइश फरमाई थी और उसे मसनद इज्जत व तमकनत बख्शी, मगर आज औरतों की बिपता बयान करने वाले हमदर्द व गमगुजार हाली से भी दुनिया खाली हो गई। आज का शायर औरतों को माओ बहनों बेटियों वाले कन्वेंशनल और कंजर्वेटिव खिताबात से भी नहीं नवाजता। अब तो ग्लोबल गांव की गोरियों के दल्लालों वाले दिन हैं और इश्तेहारी कल्चर का एक निकाती एजेंडा है जिसमें ऐ मालोजर की देवियों, फैशन की रौनक तुमसे है, मुल्कों की खिस्मत तुमसे है, कौमों की शोहरत तुमसे है और बिलाखिर ये काफत तुमसे है, पर उनका ये पहाड़ा खत्म हो जाता है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि ये इश्तेहारों और इश्तेहाओं का दौर है। इस इश्तेहारबाजी ने औरत से उसकी हया का गहना तक उतरवा लिया है। अब जेवरात की मॉडलिंग करती हुई औरत मुजस्सिम इश्तेहार बनी अपनी आखिरत को रो रही है। एक जमाना था कि मुतलक उन्नान बादशाहों का दौर था और वो बड़ी हिबतनाक सजाएं दिया करते थे अपने मुखालिफिन को। किसी को कोल्हू में पिलवा दिया, किसी को हाथी के पांव तले रुंधवा दिया, मगर आज कोई राहगीर जरा सर उठाए तो उसे सर पर लटकते हुए मुतलक उरियानी वाले इश्तेहार दुनिया तो क्या उसकी उखबा भी साथ ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।